વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, ભગવો લહેરાયો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, ભગવો લહેરાયો. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, ભગવો લહેરાયો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, ભગવો લહેરા. દરેક દરેક પ્લે કાર્ડ પર ઉપર વંદે ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી ડોક્ટર ઋત્વિજભાઈ, માન્ય મેયર શ્રી જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પૂનમબેન બાજપાઈ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરશે. આપણા હાથમાં પ્લે કાર્ડ છે. એ પ્લે કાર્ડ ઊંચા કરીને માન્ય મહેમાન શ્રીઓનું સ્વાગત કરીશું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આભાર. સ્વાગત પ્રવચન માટે યુવા મોરચાના પ્રદેશના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી ઋત્વિજભાઈને વિનંતી કરીશ સ્વાગત પ્રવચન હેતુ. ભાઈ શ્રી ઋત્વિજભાઈ. કાટલોડિયા વિધાનસભાનું આ પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન જ્યારે યોજાઈ રહ્યું છે, આપણી વચ્ચે ખરા અર્થમાં માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં જેણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીને દુશ્મનના દાંત ખાટા કરી નાખ્યા છે એવા રક્ષા મંત્રી આદરણીય નિર્મલા સીતારામનજી ઉપસ્થિત હોય ત્યારે ઉપસ્થિત સૌ ડોક્ટરશ્રીઓ, સૌ વકીલશ્રીઓ, સૌ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટશ્રીઓ, ફેશન ડિઝાઇનરશ્રીઓ, અહીં ઉપસ્થિત તમામ બૌદ્ધિક ગણને આપણી રાષ્ટ્રભક્તિના દર્શન કરાવવા માટે આહવાન કરું છું. મુઠ્ઠી વાળીને બે હાથ ઊંચા કરીને આ ઘાટલોડિયા વિધાનસભાના ઐતિહાસિક પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનના ઉપસ્થિત સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને જયકાર બોલવા માટે વિનંતી કરું. ભારત માતા કી. રક્ષા મંત્રી ખુદ ઉપસ્થિત છે. માત્ર આ ચૂંટણી ભાજપ અને કોંગ્રેસની નથી, આ ચૂંટણી ભારત અને કોંગ્રેસ વચ્ચે લડાઈ રહી છે. એટલે એક રાષ્ટ્રભક્ત તરીકે ગગનચુંબી આ કોંગ્રેસીઓના કાનના પડદા ફાટી જાય એ રીતે જયકારો બોલાવીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. મેં ભી. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભારત દેશના યશસ્વી રક્ષા મંત્રી આદરણીય નિર્મલા સીતારામનજી, કર્ણાવતી મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક આદરણીય બીજલબેન, આ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ, મહિલા મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર જ્યોતિબેન, ઘાટલોડિયા વિધાનસભાના પ્રભારી પૂનમબેન, ઉપસ્થિત સૌ વિધાનસભાના પ્રબુદ્ધ નાગરિકશ્રીઓ, વડીલો, ઘાટલોડિયા વિધાનસભા ભાજપ પરિવાર, ઉપસ્થિત સાથીઓ. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ છે. પંડિત દીનદયાળ અને ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીથી જે યાત્રા ચાલુ થઈ, અટલજી અને અડવાણીજીએ જે યાત્રાને આગળ વધારી અને આજે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતનું નામ સમગ્ર વિશ્વમાં રોશન કરવા માટેનું શ્રેય જ્યારે ગુજરાતના નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જતું હોય ત્યારે આજના જ દિવસે આ કાર્યક્રમ આયોજિત થયો એ આપણા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. કેન્દ્ર સરકારે કરેલા કામો અને ગતિવિધિઓ માટે તો આદરણીય મંત્રીશ્રી આપણને કહેવાના જ છે, પરંતુ 26 લોકસભા બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્યારે વિજય થવાનો હોય એ નિશ્ચિત થયું હોય ત્યારે અને આટલી મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો અહીં ઉપસ્થિત થયા હોય ત્યારે ઘાટલોડિયા વિધાનસભા ભાજપા પરિવાર વતી હું આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. 23 તારીખે પહેલા મતદાન પછી જલપાન
અને આપ સૌ એ વર્ગમાંથી આવો છો કે આપ મતદાન કરશો, આપ વહેલું મતદાન કરશો તો આપનાથી પ્રેરાઈને હજારો મતદારો વહેલું મતદાન કરશે, કમળ પર બટન દબાવશે. અને અહીંયા ઘણા બધા ડોક્ટરશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, એટલે જેમ પોલિયોના 2 ટીપા પીવાથી પોલિયો મુક્ત થવાય એમ 23 તારીખે કમળ પર બટન દબાવીને આ દેશને કોંગ્રેસ મુક્ત બનાવવાનું એક પુણ્યશાળી કામ આપ સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો કરવાના છે. ત્યારે ફરી એકવાર ઘાટલોડિયા વિધાનસભા ભાજપા પરિવાર તરફથી આદરણીય મંત્રીશ્રી, આદરણીય મહાનુભાવો અને ઉપસ્થિત આપ સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. ખૂબ ખૂબ આભાર ઋત્વિજભાઈ. માન્ય ધારાસભ્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે બેનશ્રીને પાઘડી પહેરાવી સ્વાગત કરશે, સાથે ઋત્વિજભાઈ ખેસથી સ્વાગત કરશે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ઘાટલોડિયા, ગોતા, થલતેજ, બોડકદેવ 4 વોર્ડના પ્રમુખશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ અને કાઉન્સિલરશ્રીઓને વિનંતી બેનશ્રીનું સ્વાગત કરશે. દાદા ધક્કા ધક્કા નહીં. જગ્યાએ જતા રહે, પાય ઉભા ના રાખો. શિક્ષણ જગતના અગ્રણીશ્રીઓ પરસોત્તમભાઈ પટેલ, ધ્રુમિલભાઈ, મનુભાઈ રાવલ સાહેબ, જસવંતભાઈ ઠક્કર, રમેશભાઈ અમીન, પંકજભાઈ પટેલ અને રાજાભાઈ પાઠક સાહેબને વિનંતી કરીશ માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. સાહેબ આ બાજુ પધારો. શિક્ષણ જગતના અગ્રણીશ્રીઓ માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ડોક્ટરશ્રીઓ ડોક્ટર હસમુખભાઈ સોની, કિરીટભાઈ પટેલ, ડોક્ટર એનજે શાહ, ડોક્ટર એસવી ત્રિપાઠી, ડોક્ટર રોહન વક્તા અને ડીજી પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. સાથે જોડાશે સંજયભાઈ ત્રિવેદી, ડોક્ટર પરાગભાઈ ઠાકર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ ડોક્ટરશ્રીઓનો. હવે પતંજલિ સંસ્થાના ગુજરાત પ્રદેશના ચીફ શિષપાલજીને વિનંતી માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના દુર્ગેશભાઈ બુચ, જેનિશભાઈ વકીલ, કૃણાલભાઈ પટેલ માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. આપણી વચ્ચે ફિલ્મ સ્ટાર અને ડાયરાના કલાકારશ્રીઓ, ગાયક કલાકારશ્રીઓ ફરીદાબેન મીર, અરવિંદભાઈ વેગડા, દીક્ષા જોશી, મોનીબેન રાવલ માન્ય મંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે. પધારો અરવિંદભાઈ. તોડ નાખો ના તૂટે.
વેપાર અગ્રણીઓ ધ્રુવીલભાઈ પટેલ, ચિરાગભાઈ વોરા, કલ્પેશભાઈ સોની, મનોજભાઈ સોની, કમલેશભાઈ સોની, અને કર્ણાવતી તામિલ સંઘના શ્રી બાલાજી અને વેંકટરામી ઝડપથી. ખૂબ ખૂબ આભાર નગર શ્રેષ્ઠીશ્રીઓનો. આજે ચૈત્રી નવરાત્રનો પ્રારંભ થયો છે. માન્ય નરેન્દ્રભાઈ ચૈત્રી નવરાત્રના ઉપવાસ કરી રહ્યા છે અને આપણી વચ્ચે ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રી માતૃશક્તિ નિર્મળાજી પધાર્યા છે, ત્યારે હું એમને વિનંતી કરીશ કે આપના પ્રવચન હેતુ તાલીઓના મદદથી આપ સર્વે નિર્મળાજીનું અભિવાદન કરીએ. માન્ય નિર્મલાજી. आप सबको मेरा नमस्कार. Is it all right if I talk in English or you want me to talk in Hindi? Okay. Huh? I'm very grateful that on a weekend the intellectuals of Ahmedabad, particularly belonging to this assembly constituency, are all here. Intellectuals and also domain experts. Each of you have your own area specialization. As was mentioned, some of you all are doctors, some of you all are engineers, some of you all are chartered accountants, professors from colleges, teachers, architects, which I mentioned, chartered accountants, did I say? So, belonging to different domains, but experts in those. But the importance of the domain you belong to is not just because you are an expert in that area, but in election season, it becomes a very important aspect of our Indian society, in that you are opinion makers. You can, in the course of conversation with people who you come across in your professional capacity, you can talk with a certain sense of authority. जिन जिन प्रोफेशंस में आप हैं उसमें आप एक्सपर्ट तो नया बात नहीं है, मगर उन एक्सपर्टीज को रखते हुए
आप आपके साथ जो मिलते हैं, आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिनसे आप संपर्क रखते हैं और जिनके साथ आप इजीली प्रोफेशनल मैटर्स बात करते करते बाकी विषयों को भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक क्रेडिबिलिटी है। आपके प्रोफेशनल एक्सेलेंस की वजह से बहुत लोग आपसे ओपिनियन लेते हैं और उनके इनपुट शेयर भी करते हैं। कई बार इक्वल्स भी होते हैं, कई बार सुपीरियर और नॉट सो सुपीरियर भी होते हैं। इसका सम्मान सब्सटेंस ये है कि आप एक वाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ संपर्क रखते हैं, जिनके साथ आप आराम से विषय बात कर सकते हैं। आराम से बात कर सकते हैं मतलब जिनसे आप पहले बार मिलते हैं, जैसे मैं बहुत सारे लोग से शायद पहले बार मिलती हूं, एक हद तक ही बोल सकते हैं कुछ विषयों को, मगर जिनसे आप बार बार मिलते हैं, डिफरेंट टाइम्स में मिलते हैं, ऑलरेडी एक केमिस्ट्री बिल्ड हो गया होगा। इसीलिए आप एक विषय को उनसे चर्चा भी करें, आपके मत ना रखें, फिर भी आप चर्चा भी करें, जिससे एक थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। उससे सिंसियरली विद सर्टन ऑथेंटिकेशन लोग सोचते हैं उस विषय के ऊपर। इसीलिए आप डोमेन, अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट क्यों ना हो, इलेक्शन सीजन में मैं मानती हूं आप आपके डोमेन एक्सपर्टीज से ज्यादा सोसाइटी के लिए ओपिनियन मेकर का रोल निभाते हो। एंड उस ओपिनियन मेकर का रोल में आप जब फैक्ट्स के आधारित कुछ चर्चा में होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर होते हैं आप। इसीलिए आज भाजपा की स्थापना दिवस के बहाने जब पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का एक जमाना था जब आइडियोलॉजी है, बहुत सारे लोग त्याग करके पार्टी को बिल्ड करने के बावजूद भी पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर्स थे हमारे, एक गुजरात में से भी आए। तब से लेकर आज तक पार्टी कितने आगे चल पड़ी है, आप सबके आशीर्वाद लेकर के, ये तो हम सब जानते हैं। पर्टिकुलरली गुजरात के आशीर्वाद इसमें बहुत अहम भूमिका रखती है। बार बार और हर एक बार, और सामने हमें अभी दिखाई दे रही है फिर एक बार का बोर्ड भी, आपके आशीर्वाद ही, जैसे एक व्हील में, चक्र में, पहिया जो बोलते हैं, उसमें फलक्रम होता है। फलक्रम में एक पिन भी होते हैं। फलक्रम है सेंटर, पूरे पहिया को इकट्ठा सॉलिड रखने वाले, मगर वो पिन अगर नहीं रखता है, इधर उधर चले जाते हैं। वो पिन का रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल्स ऑफ गुजरात। इसीलिए मैं मानती हूं एक फलक्रम का पिन जितना अहम है, जितना क्रिटिकल है, उतना क्रिटिकल है ओपिनियन मेकर्स ऑफ गुजरात। उनके सामने बीजेपी के स्थापना दिवस के समय उस संदर्भ में बात करना, मैं मानती हूं मेरे सौभाग्य है, फिर भी मैं मानती हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के लिए। मैं ज्यादा एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स से मैं रिक्वेस्ट की, इंटेलेक्चुअल के सामने में खड़े होकर के मोनोलॉग मेरे तरफ से भाषण करते बैठने से फायदा नहीं है। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट के नाते 5 मिनट कुछ विषय आपके सामने रख के मैं बैठ जाऊंगी, मगर आप जिनको भी, जैसे ऑर्गेनाइजर्स तय करें, जिनको भी कुछ विषय के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, जवाब चाहिए, वो मैं जरूर दूंगी। जिससे मैं मानती हूं इंटरैक्टिव रखने में आप जैसे हर एक विषय में सोचने वाले के लिए एक तरफा भाषण से कुछ फायदा नहीं है।
इसीलिए ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद आप खुले मन से जो भी चर्चा करना चाहते हैं वो करेंगे हम। मगर मैं दो विषय के आपके सामने रख के मैं बैठ जाऊंगी। दो विषय मैं ओपिनियन के नाते नहीं रख रही हूं, आप लोग सोचने के लिए रख रही हूं। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, दो बेसिक फैक्ट इस चुनाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रख रही हूं। 2014 में भी इलेक्शन हुआ और उस समय एक करप्ट सरकार को हटा करके अच्छा सरकार ले आने के लिए कैंपेन था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में था उस समय और हमने कैंपेन किए। गुजरात के एक्सपेरिमेंट को लेकर के मोदी जी के उनके अपने गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कैंपेन करके और कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग गुजरात को लेकर के उदाहरण पूरे देश में दिए। और इस उदाहरण को आप सामने रखते हुए क्यों हम देश के लिए ऐसा नेतृत्व रखना नहीं है, आगे बढ़ाना नहीं है, ऐसे प्रश्न रखे। एक करप्ट सरकार को हटा करके अच्छा सरकार ले आने के लिए कोशिश की। तब हम विपक्ष में थे। मगर अब 5 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव आ रही है। फर्क है उसका और इसका, मगर फर्क बिल्कुल एक विषय में नहीं है। वो विषय है कि 5 साल में सत्ता में रहने वाले मोदी जी के सरकार के रोल क्या है और विपक्ष में रहने वाले, तब हम विपक्ष में थे मगर अभी विपक्ष में रहने वाले कांग्रेस का रोल क्या है, इसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। 5 साल क्लीन सरकार, मगर 2004 से 14 तक कौन सा सरकार हमने बदलने के लिए कोशिश की, कितना करप्शन उस समय था, कंपेयर करिए। और इस 5 साल में कितने सारे विषय के ऊपर निर्णय, लगातार निर्णय होते आए। एक उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, हर दिन एक डिसीजन कम से कम हुआ है 1 जून 2014 से आज तक। और हर एक छोटे छोटे विषय के ऊपर भी जो, सॉरी मैं एक शब्द उपयोग कर रही हूं जो उपयोग मैं करना नहीं चाहती, मगर आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड टू यूज, ऐसे रिफॉर्म भी किया है जो ग्लैमरस नहीं है। क्योंकि बेसिस पर अगर रिफॉर्म नहीं करते, जितने भी दिखावा के लिए रिफॉर्म होता है उससे फायदा नहीं है, क्योंकि आपके फाउंडेशन वीक रहेगा। मगर हमारी इकोनॉमी में, हमारी लीगल स्ट्रक्चर में कितने सारे फाउंडेशनल रिफॉर्म्स करना है, वो मैं मानती हूं ग्लैमरस नहीं है। क्योंकि लोग इसके ऊपर ठीक है वो तो कर दिया, करना ही है, आगे बढ़ो, ऐसे मानसिकता से जनता भी स्पीडली रिफॉर्म्स होना चाहिए, ऐसे आशा रखते हुए ये फाउंडेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर समय बहुत नहीं मिलता हमें बोलने का या सुनने का। मगर वो रिफॉर्म्स भी लगातार मोदी जी ने करके ले आ रहे हैं। फाउंडेशनल रिफॉर्म्स जो 25-20 साल से रेगुलरली होते आना था, वो कभी ना होने के कारण अभी करना पड़ रहा है। 5 साल में ये भी हो रही है। और हर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स के तहत पहुंचना है, गरीब को पहुंचना है, जो एंटरप्राइज करना चाहता है उनको पहुंचना है, मिडिल क्लास को रिफॉर्म्स के बेनिफिट मिलना है उनके लिए, ऐसे करके हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम बोल पाएंगे। मैं वो डिटेल्स अभी आपके सामने नहीं रख रही हूं, वो डिटेल्स आपको पहुंचेगा। मगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप थिंकिंग सिटीजन से, आपके सामने ये प्रश्न रख रही हूं, तब की सरकार और तब की विपक्ष वर्सेस अब की सरकार, अब की विपक्ष, ये बनाम वो आप कंपेयर करके सोच लीजिए। 10 साल में क्या करना था वो नहीं किया, और 5 साल में, जैसे कभी कभी मोदी जी भी कहते हैं, हमारे 5 साल वर्सेस 50 इयर्स, आप गिन कर देख लीजिए कितने काम हुआ है। सो कंपेयर दैट और कंपेयर ऑपोजिशन।
14 के पहले बीजेपी ऑपोजिशन में रह करके, हाँ, हम सरकार को कटघरे में रखने के लिए बहुत सारे प्रश्न उठाए। पार्लियामेंट में अरुण जी और सुषमा जी का रोल आपको दिखाई देता है टीवी में। तब ये सब करते हुए सरकार को ऑन इट्स टोस रखने के लिए हर कदम प्रयत्न किए, हम भी किए ऑपोजिशन, मगर ये नहीं किए कि सरकार के ऊपर बेबुनियाद आरोप डालते जाओ। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मगर हम सुनते नहीं है। पार्लियामेंट में भी मोदी जी आप ये है, मोदी जी आप वो है, मगर मोदी जी खड़े होने में चिल्ला चिल्ला करके उनके बाद आपको सभा में जो बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मगर आप जो बाहर हैं सभा से, आप लकी है, क्योंकि टेलीविजन के द्वारा वो चिल्लाना विल्लाना कुछ आपके कानों में नहीं आता, सीधा प्रसारण सुन सकते हैं। जो हम बैठे हैं सभा में कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला करके हम कई बार सोचते हैं कि उनके गला क्या होगा यार, ये आधा घंटे में इतना चिल्ला मगर मोदी जी तो भगवान की दया से एकदम। ये है आज के ऑपोजिशन। ये आज के ऑपोजिशन है। जो प्रश्न पूछता है वो उनके हक है, हम भी मानते हैं। ऑपोजिशन इसीलिए है, सरकार से बार बार प्रश्न पूछना, जवाब मांगना उनके हक है, मगर वो कर रहे हैं। मगर जवाब देने के लिए जब खड़े होते हैं उनको जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है उनके कहानी खत्म हो जाएगा, इसीलिए जवाब नहीं चाहिए। भाई हम प्रश्न पूछते रहेंगे, आप जवाब नहीं दोगे, और जवाब दोगे तो भी हम इतना चिल्लाएंगे किसी को सुनाई नहीं देगा। मगर आज टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है, हम पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए 300 लोग सुन नहीं सकते, मगर बाहर तो पूरे टेलीकास्ट हो रही है, आप देख रहे हैं। आंख मारना भी देख रहे हैं आप, है ना। इसीलिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं तब की सरकार जो पूर्ण तरीके से करप्ट था, हर एक बात, कोल में करप्शन, वाटर में करप्शन, अर्थ में करप्शन, स्काई में करप्शन, इतने करप्शन करके हर बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है केस, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होता है। ऐसे सरकार की ऑपोजिशन में हम थे, और आज सरकार एकदम एक के बाद एक अच्छा काम करते जा रहे हैं। विपक्ष क्या है, अरे भैया ये तो काम कर रहे हैं जी, इनको रोक लो, ये तो कुछ बोलते हैं जी, इनको रोक लो। रोकने के लिए ही अभी विपक्ष ऐसे हो गया हालात। हम आगे देश को ले जाना है कि नहीं, आगे अच्छा नेतृत्व के साथ इस देश को अच्छा बढ़िया बनाना है कि नहीं, स्पष्ट लीडरशिप चाहिए कि नहीं, इन सभी विषयों में मैं आपसे विनती करती हूं, आप सोचना चाहिए। सो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहकर मैं बैठ जाती हूं, चुनाव के समय हम चुनना है, वी हैव टू सेलेक्ट, वी हैव टू इलेक्ट। आपको मालूम है सरकार में आज जो पार्टी है, आज जो अलायंस है, आज जो कोएलिशन है एनडीए का, उनका नेता कौन है, किन के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और वो नेता के बारे में मैं गुजरात में बोलने का आवश्यकता नहीं। गुजरात में मोदी जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा उनके बारे में मालूम है, और नेतृत्व उनका है। पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं और मंत्रीगण जितने भी हैं, अलायंस में कितने भी हैं, वो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। मगर विपक्ष में मोदी जी के सामने कौन है जी? क्या चुनने के समय हमारे सामने आपको दिक्कत कब होगा? अगर आमने सामने के इक्वल लीडर्स खड़े हैं, एक्सपीरियंस में, उनके क्वालिटीज में, क्लियर हेडेड थिंकिंग में, आप सब कंपेयर कर सकते हो, तब डिफिकल्ट होगा कि भैया इनका या इनका अलायंस ऐसे है, इनका अलायंस है। इधर हर एक विषय में
नेता, अलायंस, जो पार्टियां इनके साथ है, इनमें हर एक के ऊपर क्या क्या चल रही है, क्या क्या केसेस है, ये सब आपके सामने है। इसीलिए मैं सिर्फ ये 2 हाइलाइट आपके सामने रखते हुए, आपके द्वारा जब चर्चा होती है, आपके सामने, आपके साथ जो भी बैठे हैं उनके साथ ये विषय जरूर हम मन में रखते हुए बात करना है। और चुनाव के दिन यही होगा मुद्दा, बाकी सब कुछ भी नहीं है। क्या नेतृत्व हमें चाहिए इस देश का, जो नेता विदेश में भारत देश का शान बढ़ाया, जो नेता आज आप बालाकोट में जाकर के टेररिस्ट कैंप को खत्म करो। दुनिया में एक ऐसा भी देश नहीं है जो खड़े होकर के भारत आपने गलत कर दिया। बालाकोट के बाद एक भी ऐसा देश नहीं है विदेश में, दुनिया में, जो भारत को क्रिटिसाइज किया है। नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। एक कैसे संभव हुआ? हमें ये कैसे संभव हुआ? पिछले 5 साल में जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, देश के दूसरे देश के साथ संबंध बढ़ाने के लिए बहुत सारे विषय चर्चा करते हैं। उस देश और हमारे देश के आपस में क्या संबंध रहना है, कितना बलबूते से रहना है, ये सब बात करते हैं। मगर साथों साथ पाकिस्तान हमारे लिए कितना गड़बड़ कर रहे हैं, ये बात भी हर देश के साथ मोदी जी ने स्पष्ट सामने रख के आए हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार पूछते थे, ये क्या है मोदी जी बार बार विदेश जाते हैं, भारत में रहने दो, इधर गवर्नेंस करने दो, ये सब बोलने वाले आज मैं पूछ रही हूं, इस 5 साल में ऐसे संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रम अगर मोदी जी नहीं करते, बालाकोट के बाद ऐसे रिस्पॉन्स हमें मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इसीलिए कि उनके सामने सच्चाई को बार बार मोदी जी जिक्र करके, फैक्ट्स के साथ बात करके आए, संबंध को और स्ट्रेंथन किए। इसलिए आज हमें पूरे दुनिया में दोस्त मिलते हैं, कोई हमें खिलाफ बोलने वाले नहीं। और दूसरा, इतना गड़बड़ करने वाले पाकिस्तान को दुनिया का समर्थन ना मिलना चाहिए, पाकिस्तान अलग थलग होना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न मोदी जी ने किया। इसीलिए आज पाकिस्तान में इतना दिक्कत है। हाँ, कोई हमें क्रिटिसाइज नहीं किया, वो भी उनका दुख है, मगर उससे ज्यादा दुख फाइनेंशियल एक्शन ऑन टेरर फंडिंग, जो FATF बोलते हैं, दुनिया में एक कानून है, उसके तहत अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कंट्री टेररिस्ट को प्रोत्साहन देते हैं, समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। FATF में ग्रे लिस्ट में पहुंचा पाकिस्तान अब तक, अभी ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। सिर्फ और पाकिस्तान ये भी बोल रहे हैं, आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान ये भी बोल रही है कि हमें ऐसे दिक्कत पूरे दुनिया के साथ अभी झेलना पड़ रही है, सिर्फ इसीलिए कि भारत के कैंपेन के वजह से। मतलब वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत ने हर देश के साथ पाकिस्तान की सच्चाई बोलकर आए, उसके कारण आज पाकिस्तान को FATF का ब्लैक लिस्ट में आना संभव हो रही है, ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है। ये किसके कारण हुआ? पिछले 5 साल में क्यों हुआ? इससे पहले UPA सरकार के समय क्यों नहीं हुआ? मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद। દોસ્તો, આપણા ધારાસભ્ય માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ, માન્ય મંત્રીશ્રીને આપ સંવાદ કરી શકો, પ્રશ્ન પૂછી શકો, એટલા માટે અને આપણા ધારાસભ્ય સતત આપણી વચ્ચે, આપણી સોસાયટીમાં હર હંમેશ આવે છે, એટલા માટે
આજે એમને પ્રાસંગિક પ્રવચન કર્યું નથી કે સતત આ નાગરિકોની વચ્ચે હું રહું છું, પરંતુ માન્ય મંત્રી શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે અને એની સાથે સંવાદમાં લાંબો સમય મળી શકે એ હેતુ સાથે માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈએ